June 2019, variance 42. सही है? कैलकुलेशन में प्लीज हेल्प कीजिएगा मुझे. Complete the electronic configuration of the copper 2 ions. कॉपर 2 आइंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 3d9 और 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे. 4s में से एक इलेक्ट्रॉन, 3d में से भी एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा. स्टेट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग द फॉलोइंग आयंस. तो इसका है पेल ब्लू सॉल्यूशन और CuCl4 2- is basically yellow. फिर वो कह रहे हैं octahedral complexes of copper ions with different ligands can have different colors. Explain why. तो आप बताइए कि different ligands have different strength and so they have different splitting pattern. So different ligands have different strength so they have different splitting pattern. This means photon of a specific frequency is needed for electron excitation, or electron excitation need a DD electronic transition is the same thing. Thus, during this transition, certain wavelengths are not absorbed that corresponds to the color of the solution observed. Copper 1 and silver 1 salts are colorless. Suggest why? Because copper 1 और silver 1 ions में d orbital fulfilled होता है. Because both copper 1 and silver 1 salts have fulfilled d orbital. ठीक है जी. और जब d orbital fulfilled होगा तो there will be no dd electronic transition.
Consider the following two equilibria and associated data with the values at 298 Kelvin. ये KSP की value है, ये K step की value है. The equilibrium constant for equilibrium 1 is the solubility product of AGBR. The equilibrium constant for equilibrium 2 is the stability constant for the formation of this ion. Calculate the solubility of AGBR at 298 Kelvin. तो अगर मैं AGBR की solubility निकालना चाहूँ तो मैं एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का यूज करूंगा KSP equals to concentration of silver ions and concentration of bromide ions. KSP की वैल्यू गिवन है 5.0 into 10 to the power -13 और जाहिर सी बात है मुझसे वो कह रहे हैं solubility of AGBR निकालो तो मैं सिल्वर आइंस को भी x लूंगा, मैं ब्रोमाइड आइंस को भी x लूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू बेटा आएगी आपके पास, वो वैल्यू है आपके पास 7.1 into 10 to the power -7 मोल पर डी. तो जो कंसंट्रेशन आपने सिल्वर आइंस की निकाली है एग्जैक्टली वही कंसंट्रेशन सिल्वर ब्रोमाइड की भी होगी बिकॉज ऑफ 1:1 का रेशियो. फिर वो आपसे कह रहे हैं use Lee Shuttler's principle as applied to equilibria 1 and 2 to suggest why AGBR dissolves in concentrated aqueous ammonia. When you add aqueous ammonia तो जाहिर सी बात है बेटा जब आप एक्वस अमोनिया ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाएगा. जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. जब सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन यहाँ कम होगी तो ऑब्वियसली सिल्वर आयन यहाँ पर भी कम हो रहे होंगे, व्हिच इज व्हाई इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. ठीक है, तो आप बताएंगे आई होप यू इट मेक्स सेंस टू यू. व्हेन वी ऐड अमोनिया इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाएगा. जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा सिल्वर आयंस कम, जब सिल्वर आयंस कम होंगे तो यहाँ पर भी सिल्वर आयंस कम हो रहे होंगे एंड सो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, तो AGBR डिसॉल्व हो जाएगा. तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे यूजिंग concentrated aqueous ammonia favors equilibrium 2 towards right hand side. Thus concentration of silver ions decreases, so to balance silver ion concentration, first equilibrium favors towards right hand side. Thus AGBR dissolves. Use equilibria 1 and 2 to construct an equation for the reaction of AGBR with concentrated aqueous ammonia. This is equilibrium 3. So बेटा जब AGBR आपके पास है और आप उसको aqueous ammonia से रिएक्शन करवा रहे हैं, ये इक्वेशन हमने AS केमिस्ट्री में भी पढ़ाई है आपको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AgNH3 टेकन टू Br में. ठीक है, प्लस Br नेगेटिव aqueous. Write an expression for the equilibrium constant of equilibrium 3 in terms of KSP for equilibrium 1 and K step for equilibrium 2. So बेटा इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा KSP into K step. ठीक है, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि K equilibrium 3 equals to concentration of complex concentration of bromide ion over concentration of ammonia
पावर स्क्वायर, क्योंकि उसके 2 मोल्स हैं और मैं इसको यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये सॉलिड और सॉलिड सब्सटेंसेस को कभी भी यूज नहीं करते. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. Next is define the term standard electrode potential. So बेटा standard electrode potential की definition बहुत आसान सी है. The potential difference when the test electrode is attached to standard hydrogen electrode under standard condition, we can complete and label the diagram to show how the standard electrode potential of silver ions could be measured under standard condition. तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डायग्राम है. एग्जामिनर कह रहा है आप कंप्लीट करो तो हम कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है. सो बेसिकली क्या हो रहा है, यहां से हम 1 atm प्रेशर अंडर 298 केल्विन हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ये आपका है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. ठीक है जी. और ये आपका है हाइड्रोजन आयन 1 मोल पर डीएम3. ये आपका वोल्ट मीटर है. ये आपका सॉल्ट ब्रिज है. ये आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड है. और ये आपका सिल्वर आयंस है. और सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली 1 मोल पर डीएम3 लिख जाएगी. वो कह रहे हैं यूज द डेटा बुकलेट टू लेबल द डायग्राम. ठीक है, ये लेबल्ड हो गई पूरी. विच इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिस हाफ सेल की एसीपी की वैल्यू मोर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑब्वियसली दिस वन. तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये होगा. एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम नेगेटिव हाफ सेल टू पॉजिटिव हाफ सेल इन द एक्सटर्नल सर्किट. यही चीज पढ़ाई आपको. इसके बाद वो कह रहे हैं group 2 carbonates decompose when heated. Write an equation for the decomposition of carbonate ion. तो carbonate ion की decomposition के लिए हम सिंपल करेंगे कुछ इस तरह कि ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्साइड आयन में. ठीक है. Describe and explain how the thermal stability of group 2 carbonate changes with increasing atomic number. Thermal stability increases thermal stability increases as we increase the atomic number. Because charge density and polarization decreases. When charge density and polarization decreases, cation cannot distort the electrons of carbonate ions easily. Cations cannot distort
the electrons of carbonate ions easily, ठीक है. Lead to carbonate and zinc carbonate decompose on heating in a similar way to calcium carbonate. State relevant data from the data booklet and use it to predict the order of the thermal stability of these three carbonates. ठीक है. तो डेटा बुकलेट से हम देख के लिखेंगे बेटा. कैल्शियम आयन का डेटा है आपके पास 0.099 नैनोमीटर. डेटा बुकलेट में जिंक आयंस का भी रेडियस है और वो है 0.075 नैनोमीटर. लेड आयन का भी रेडियस डेटा बुकलेट के अंदर गिवन है और वो है 0.12 नैनोमीटर. ठीक है. तो सबसे लीस्ट स्टेबल जो है वो जिंक आयंस होगा और सबसे मोस्ट स्टेबल जो है वो लेड आयंस होगा, इसलिए क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे, इसका रेडियस सबसे ज्यादा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम, पोलराइजेशन सबसे कम. ठीक है. मोस्ट स्टेबल होगा. तो कैल्शियम आयन जो है वो यहाँ लिख दिया जाएगा आपके लिए. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं डोलोमाइट कंटेन द डबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड सम impurities. When 0.642 gram of sample of dolomite react with excess hydrochloric acid, 125 cm³ of carbon dioxide is formed under room condition. Calculate the percentage of calcium, hydrogen, calcium magnesium carbonate in the sample of dolomite. Show all your working. Assume that none of the impurities react with HCl. ठीक है. तो भाई सबसे पहली तो बात ये हो गई कि मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करूंगा. और मैं 125 cm³ को डिवाइड कर दूंगा 24,000 cm³ से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 5.21 into 10 to the power -3 मोल्स. सही है. सेकंड, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जब आप इसको HCl से रिएक्शन करवाओगे तो ऑब्वियसली ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बोनेट्स हैं तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे HCl से रिएक्शन करने पे. इसका मतलब इन दोनों के दरमियान रेशियो है 1:2 का. अगर आपने 5.21 into 10 to the power -3 मोल्स कैलकुलेट किया है तो मोल्स ऑफ डोलोमाइट कितने हो जाएंगे आपके पास? 2.61 into 10 to the power -3 मोल्स. ठीक है. मोल्स ऑफ डोलोमाइट आ गए. अब मेरे पास है MR ऑफ डोलोमाइट. ये मैं कैलकुलेट करूंगा 184 आएगा. जाहिर सी बात है कैल्शियम 40.1 होता है, मैग्नीशियम 24 होता है, कार्बन 12 टाइम्स 2 होगा, ऑक्सीजन 16 टाइम्स 6 होगा. ठीक है. तो इस तरह से ये डोलोमाइट का MR 184 बनेगा. तो अगर मुझे यहाँ से मास ऑफ डोलोमाइट कैलकुलेट करना हो तो मैं 184 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.61 into 10 to the power -3 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.479 ग्राम. और वो मुझसे पूछे परसेंटेज ऑफ डोलोमाइट. तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो मास मैंने कैलकुलेट किया 0.479, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा गिवन मास से, विच इज 0.62642 into 100. तो मेरे पास बेटा परसेंटेज आ जाएगी 75. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. इसके बाद है आपके पास स्केच द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल. अब डी ऑर्बिटल आपके पास 5 होते हैं, 5 में से कोई भी एक बना दीजिए. जो सबसे आसान है वो बना दीजिए. सबसे आसान तो यही है आपके पास कि आप ये बनाइए. इसको हम नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस का, इसको वाई एक्सिस का, इसको जेड एक्सिस का, और हम बेसिकली क्या बना देते हैं, हम dz² बना देते हैं. कोई से भी 5 में से कोई सा भी ऑर्बिटल बना दीजिए, कोई इशू नहीं है.
ये है जनाब dz², लेबल कर दीजिए इसको। ठीक है, वो फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज मीन बाय द टर्म ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप बताइए एन एलिमेंट that can form one or more stable ion having partially filled d orbital। ठीक है जनाब। फिर वो कह रहे हैं आपसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म complex ions which contain ligands, name the type of bonding that occurs between ligand and a transition element। तो आप बोलेंगे additive bonding, also called coordinate covalent bonding। तो वो पूछ रहे हैं give the formula of the two oxides of iron, state the oxidation number of iron in each compound। तो बेटा ये आपके पास है FeO, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, फिर है Fe2O3, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। देन carbon monoxide and cyanide are monodentate ligands। Complete the table for the following two complexes। देखें चार्ज आपके पास 2+ है और आप जानते हैं कि ये न्यूट्रल है और उसमें 4 लाइगेंड का है, तो इसका मतलब आप कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनाएंगे NiCO टेकन 4, ये 2+, इसके ऊपर 2+ चार्ज ही होगा। ठीक है, अगर आपने चार्ज 3- रखा हुआ है और ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है और साइनाइड नेगेटिव लाइगेंड्स हैं, इट हैज टू बी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये बनेगा FeCN6 3-। ठीक है, अब आप खुद से सोच लीजिए कि यार ये x है, ये -1 × 6 है, होल चार्ज -3 दिया था एग्जामिनर ने, तो x इक्वल्स टू +3। इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की उसी वक्त आएगी जब आप 6 साइनाइड आयंस यूज करेंगे विद द चार्ज ऑफ 3-। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस कैन एग्जिबिट स्टीरियोआइसोमेरिज्म। तो देखें ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ Ml4x2, इसको कह सकता हूँ Ml2x2। तो जब भी Ml4x2 हो या Ml2x2 हो, आइसोमेरिज्म हमेशा कौन सा होगा? ज्योमेट्रिकल। यही चीज हमने पढ़ाई थी आपको। वो कह रहे हैं कंप्लीट द 3-डायमेंशनल डायग्राम द टू आइसोमर्स ऑफ दिस। तो बेटा मैंने कहा था कि इन जगहों के ऊपर सेम साइड पे कर लो अमोनिया तो ट्रांससेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं अमोनिया को इस तरह से अटैच कर दूं, डायगनली अटैच कर दूं इस तरह से, तो ये ट्रांस हो जाएगा। अब वाटर से कंपीट कर देते हैं इसको। ठीक है, हाँ समझ में आ रही है। तो ये सिस हो गया आपका, क्योंकि सेम साइड पर है अमोनिया, अमोनिया डायगनली अटैच हो गया, ट्रांस। अब इसके लिए भी, प्लैटिनम के लिए भी यही है, 2 क्लोरीन 2 अमोनिया है, तो क्लोरीन को यहाँ कर दीजिए, अमोनिया को यहाँ कर दीजिए, ये सिस हो गया आपका। अगर मैं दोनों क्लोरीन को डायगनली अटैच कर दूं तो ट्रांस हो जाएगा आपका। ठीक है जनाब। पार्ट एफ, कॉपर कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द ligands ammonia and En as shown। ठीक है, ये केस स्टेप की वैल्यू है और ये केस स्टेबिलिटी की वैल्यू है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम 5, स्टेट इट्स यूनिट। इक्विलिब्रियम 5 के लिए कह रहे हैं, यानी इसके लिए कह रहे हैं, तो ये तो आसान हो जाएगा, आप इस तरह से लिख दीजिए, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, 4 वाटर 2 अमोनिया, होल चार्ज 2+, ये स्क्वायर ब्रैकेट। वाटर कभी भी नहीं लेते, आप जानते हैं।
वाटर एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है, इसलिए यूज नहीं करेंगे इसको। ये 2+, ये अमोनिया, पावर स्केल, ठीक है। यूनिट, ये यूनिट इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यूनिट बनेगी ये आपके पास मोल स्क्वायर DM-6। तो फाइनल यूनिट होगी मोल इनवर्स टू DM6। तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स टू DM6। तो वो कह रहे हैं द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर इक्विलिब्रियम 4 इज दिस एंड फॉर इक्विलिब्रियम 5 इज दिस, सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस डिफरेंस बाय बोथ इक्विलिब्रिया। अब देखो यार, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 3, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 2, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोडक्ट साइड पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा, एंट्रोपी ज्यादा। यहाँ देखें, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 और यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है ऑन बोथ द साइड, व्हिच मींस एंट्रोपी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम 4 more molecules on the product side meaning more disorderness and more entropy. Whereas in equilibrium 5, number of moles are same on both the sides. One of the three copper complexes in equilibrium 4 and 5, state the formula of the copper complex that is most stable and explain your choice. तो बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया था बहुत categorically कि complexes which are formed through bidentate ligands are more stable than the ones which are formed through monodentate ligands. इसका मतलब this complex is more stable क्योंकि stability constant की वैल्यू भी ज्यादा है। हम यहाँ लिखेंगे Cu H2O taken 4En 2+, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन क्या है, हायर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हायर वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, the initial rate of reaction for propanol and iodine in acid solution is measured in experiment at constant temperature. The rate equation was determined experimentally to be as shown. ये रेट इक्वेशन आ गई है, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर है, जब पावर नहीं होती तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर होगा बेटा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर होगा क्योंकि ये दोनों रेट इक्वेशन के अंदर लिस्ट हुए हैं। आयोडीन रेट इक्वेशन में नहीं है, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर होगा। स्टेट द ओवरऑल ऑर्डर, सेकंड हो जाएगा, दोनों इंडिविजुअल ऑर्डर्स को ऐड करेंगे तो द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस mole per dm cube second inverse when the concentration of propanol is this, iodine and hydrogen ion concentration is this, calculate the rate constant. तो बेटा rate 5.40 into 10 to the power minus 3 given है, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रोपेनॉन की कंसंट्रेशन है 1.50 into 10 to the power minus 2, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 7.75 into 10 to the power minus 1, तो यहां से k की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी 0.471 और यूनिट इसकी होगी मोल इनवर्स DMQ सेकंड इनवर्स। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। देखो इसकी यूनिट है मोल पर DM³ सेकंड इनवर्स और k एज इट इज, और इसकी यूनिट हो जाएगी मोल स्क्वायर DM-6।
ठीक है, तो ये हो जाएगा K इक्वल्स टू mole inverse 1 dm cube second inverse. I hope it makes sense to you. वो कह रहे हैं complete the table by placing one tick in each row to describe the effect of decrease in temperature on the rate constant and the rate of reaction. बेटा जब rate constant temperature decrease होता है, rate constant decrease होता है, rate of reaction भी decrease होता है. ठीक है. From the results, a graph is produced which shows how the concentration of iodine changes during the reaction. Describe how this graph could be used to determine the initial rate of reaction. बेटा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा. ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया. मैं यहाँ लिख देता हूँ draw the tangent and find the gradient in order to determine the initial rate of reaction. On the axis below, sketch a graph to show how the initial rate changes with different initial concentration of propanol. बेटा हमने आपको पढ़ाया कि जब रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ हो और आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हो, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, तो ग्राफ जो है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, वो कह रहे हैं आपसे द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन मेटल आयन वाज स्टडीड. द फॉलोइंग थ्री स्टेप मैकेनिज्म हैज बीन सजेस्टेड फॉर दिस रिएक्शन. Step 1 is the rate determining step. Explain what is mean by the term rate determining step. तो बेटा स्लो स्टेप रिएक्शन को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं. Use this mechanism to determine the overall equation for this reaction. Okay, overall equation determine करना चाहता हूं मैं. देखें ये Ce3 प्लस है और ये Mn3 प्लस है. आप नोट करें यहाँ पर भी Mn3 प्लस है, इसका मतलब Mn3 प्लस जो है वो इंटरमीडिएट है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं Ce4 प्लस Mn2 प्लस C3 प्लस प्लस Mn3 प्लस, इन दोनों इक्वेशंस को एज इट इज लिख लेता हूं मैं. आप जानते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. कैंसिल होंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी Ce4 प्लस 2Ce4 प्लस प्लस Mn2 प्लस प्लस 2Ce3 प्लस प्लस Mn4 प्लस. अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को लिंक करेंगे यहाँ पर. ये हो जाएगा Mn4 प्लस प्लस Tl प्लस एरो Tl3 प्लस प्लस Mn2 पॉजिटिव. तो इसको देखो, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, Mn2 प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो है वो ये इक्वेशन बचेगी. मैं इसी को लिख देता हूँ. ठीक है, ये बचेगा 2Ce4 प्लस प्लस Tl प्लस एरो Tl3 प्लस प्लस 2Ce3 प्लस. ठीक है ना. वो कह रहे हैं सजेस्ट द रोल ऑफ Mn2 प्लस आयन इन दिस रिएक्शन. बेटा Mn2 प्लस आयंस से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, मुझे वापस Mn2 प्लस आयंस मिल रहा है एक्स एज अ कैटलिस्ट. ठीक है ना, ये देखो Mn2 प्लस से स्टार्ट हुआ, वापस Mn2 प्लस मिल रहा है एक्स एज अ कैटलिस्ट. It acts as a catalyst because it will recover
at the end of reaction. Complete the table by placing one tick in each row to indicate the sign of each type of energy change under standard condition. Lattice energy, always negative. Enthalpy change of neutralization, always negative. Define the term in words. Enthalpy change of solution. The beta enthalpy change occur when 1 mole of compound is dissolved in large amount of water to give an infinite dilute solution. Okay. All right, everyone, let's start part C. In part C, the following enthalpy changes are given. Standard enthalpy change of formation of K3PO4 is given, which is minus 2035. Whereas the standard enthalpy change of for this reaction is also given, which is minus 1284. Standard enthalpy change for this is also given, which is minus 251. Let me tell you one thing here, that this involves atomization of potassium, then ionization of potassium, and then hydration enthalpy of potassium. देखो यहाँ पर सॉलिड है तो ऑब्वियसली इनिशियली गैस में कन्वर्ट हुआ होगा तो एटमाइजेशन हो गई, फिर गैस से पॉजिटिवली चार्ज आया, दैट मींस आयोनाइजेशन हुई, फिर वो गैसियस पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो गया एक्वस पॉजिटिव आयन में, दैट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी. तो बेसिकली दिस एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल थ्री. ओके, so according to the format of the question, determine the standard enthalpy change of solution of potassium phosphate. It may be helpful to draw an energy cycle. Let's make the energy cycle. We really wanted to calculate the standard enthalpy change of solution, and standard enthalpy change of formation of K3O4 is given. So let's make this diagram. This is potassium solid, phosphorus solid, oxygen gas. They are all reacting together, converting into K3PO4 solid. All right, now let's balance the equation. We have 3 potassium here, so put 3 here. We have 1 phosphorus, we have 4 oxygen, so put 2 here. And that's the standard enthalpy change of formation. Okay, now we really wanted to calculate the standard enthalpy change of solution. So what we can do is, ये 1 mole of compound है, when you place in large amount of water, it will turn to aqueous potassium phosphate, and that's basically standard enthalpy change of solution, right? On the other hand, when these gaseous when these constituent elements combine together to give 1 mole of this, then it's going to be represented by delta H1. Okay, now draw the clockwise direction in this Haseloff cycle. This arrow and this arrow will give you positive, this value must be negative. So
scenario of this, delta HF is positive. Solution की value को भी plus लेंगे हम. Delta H1 is going to be negative, equals to 0. Since मुझे solution की value calculate करनी है, तो ये हो जाएगा delta H solution equals to delta H1 minus delta HF. Delta H1. Now delta H1 includes what? Just hold on a second. थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं. Makes sense. ठीक है. Delta H1. Delta H1 includes potassium का data, right? And this value, and this value needs to multiply by 3 because we have 3 moles of potassium. So it's going to be minus 251 multiplied by 3 plus. Now phosphorus and oxygen combine together to give phosphate, and this energy is given here. So you get a minus 1284. Okay, so that's my delta H1. Minus formation की value is minus 2035. So delta H solution is going to be minus 2 kilojoules per mole. So minus 2 kilojoules per mole is the right answer for you. I hope it makes sense to you. Again, I repeat, potassium is converted into aqueous potassium ion, which means all these energies are involved. So delta H1 contain this value. It needs to be multiplied by 3 because we have 3 potassium, right? Now phosphorus and oxygen combine together to give phosphate ions. And according to this, the energy value is minus 1284. हमने उसको plug in किया, sort out किया, we got the answer, which is minus 2 kilojoules per mole. I hope it makes sense to you. D part. तो कह रहे हैं लैटिस एनर्जी कैल्शियम ब्रोमाइड की ज्यादा है पोटेशियम ब्रोमाइड से, क्यों? तो आप बताइए. कैल्शियम ब्रोमाइड की चार्ज डेंसिटी, कैल्शियम ब्रोमाइड has high charge density. So it exhibits strong electrostatic attraction. Between opposite charges. For a particular gas phase reaction, the variation in standard Gibbs free energy change with temperature is shown. ठीक है. Assume standard enthalpy change and standard entropy change remain constant with temperature. तो कह रहे हैं write the equation that relates delta G to delta H and delta S naught. तो बेटा ये तो बहुत easy है. ये हो जाएगा delta G naught equals to delta H naught minus T delta S naught. Use this equation to explain why delta G naught becomes less positive as temperature increases. तो बेटा आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो T delta S naught की टर्म becomes more negative. So delta G becomes more negative. More negative बोला या less positive बोला, it doesn't make any difference. तो आप यहाँ लिख सकते हैं as temperature increases, T delta S naught term becomes more negative. So delta G naught is more negative or less positive.
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। By reference to the formation of sigma and pi bond, describe and explain the shape of a benzene molecule C6H6। तो भाई बेंजीन मॉलिक्यूल की शेप है, तो आपको सारे पॉइंट्स बताए हुए थे। पहला पॉइंट तो यही था कि हेक्सागोनल रिंग शेप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर आप ये बताएंगे ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जब सारे के सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो ज्योमेट्री प्लेनर होगी, एंगल 120 डिग्री का होगा। एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड है, ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड। फिर हम ये भी बताएंगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ विल रिमेन सेम थ्रू आउट द रिंग। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आपसे 2,3 डाइमेथाइल फिनाइलामाइन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस इन 2 स्टेप एज शोन। ठीक है, step 1 is catalyzed by H2SO4। write an equation to show how H2SO4 generates the electrophile during step 1। तो नाइट्रेशन का जो step 1 है वो लिख लीजिए यहाँ पर। 2 moles of nitric acid, sorry 1 mole of nitric acid reacts with 2 mole of sulfuric acid, converting into 2HSO4 negative plus H3O plus NO2 positive। Draw the mechanism of the reaction between this electrophile and 1,2-dimethylbenzene to form M। Include all relevant curly arrows and charges। तो बेटा आप NO2 के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं, which is your electrophile। इलेक्ट्रोफाइल इससे रिएक्शन करेगा तो इंटरमीडिएट पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। एग्जामिनर ने प्रोडक्ट में NO2 अटैच किया हुआ है, उसी कार्बन एटम पे हमने भी अटैच करना होगा, तो हम इस कार्बन एटम के ऊपर अटैच करेंगे NO2, हाइड्रोजन भी शो करेंगे। इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक डॉटेड लाइन पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर देंगे। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड इनटू द रिंग, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिखाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास H+ साइन। ठीक है, फिर आपके पास राइट एन इक्वेशन टू शो हाउ द H2SO4 कैटलिस्ट इज रीफॉर्म। तो रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट है 2HSO4 नेगेटिव लीजिए, H3O+ लीजिए, हाइड्रोजन आयन लीजिए, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल। For step 2, suggest the reagents and conditions and name the type of reaction। स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, आप नोट करेंगे NO2 है, ये कन्वर्ट हो गया NH2 में, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। NO2 से NH2 की रिडक्शन जब भी होती है तो 10 कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर एज अ रिएजेंट इस्तेमाल होता है, और कंडीशन जो है वो रिफ्लक्स इस्तेमाल होती है। टाइप ऑफ रिएक्शन रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। फिर वो आपसे कहते हैं the drug mefenamic acid can be made using 2,3-dimethylphenyl in an excess of 2-chlorobenzoic acid। ठीक है जनाब, वो कह रहे हैं deduce the molecular formula of mefenamic acid। कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 कार्बन एटम्स हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 1,
नेम द फंक्शनल ग्रुप अपार्ट फ्रॉम द बेंजीन रिंग इन मेफेनेमिक एसिड। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एक अमाइन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड एन अमाइन, ठीक है। और आप चाहें तो इसको 2 डिग्री अमाइन भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, ठीक है। Calculate the maximum mass of mefenamic acid that could be formed from 5 gram of 2,3-dimethylphenylamine in this reaction. Give your answer to 3 significant figures. तो भाई सबसे पहला काम बेटा मैं मोल्स कैलकुलेट करूंगा 2,3-dimethyl के, मोल्स ऑफ फिनाइलामाइन शॉर्ट करके लिखा है मैंने, हाँ। तो मैं 5 को डिवाइड कर दूंगा इसके एमआर से विच इज 121, तो मोल्स आएंगे 0.0413। जो मोल्स इस 2,3-dimethyl के हैं एग्जैक्टली वही मोल्स इस मेफेनेमिक एसिड के भी होंगे बिकॉज 1:1 का रेशियो दोनों में। ठीक हो गई ये बात। तो आप बता दीजिए कि मोल्स ऑफ मेफेनेमिक एसिड आपके पास कितना है, 0.0413 मोल्स, ठीक है। नंबर थर्ड, एम आर ऑफ मेफेनेमिक एसिड आपने खुद से निकालना है, तो एम आर ऑफ मेफेनेमिक एसिड मिलेगा आपको 241, ठीक है। सो अगर मुझे मास कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो मास ऑफ मेफेनेमिक एसिड हो जाएगा आपके पास 241 मल्टीप्लाई बाय 0.0413, तो ये हो जाएगा 9.95 ग्राम। तो यहाँ लिख दीजिए 9.95 ग्राम, ठीक है। इसके बाद है पार्ट डी। The position of substitution in the electrophilic substitution of arenes can be explained based on the stability of the intermediate cation formed in the first step. The example given involves the bromination of methylbenzene. ये third position, ये 2 position, ये 4th position वो कह रहे हैं use this information and your knowledge about the stability of cation. यार ये important है। To suggest why the methyl group directs incoming electrophile to the second and fourth position in preference to third position. आप नोट करें ये आपका टर्शी कार्बोकैटायन, आप नोट करें ये भी टर्शी कार्बोकैटायन, एंड टर्शी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये 2 डिग्री हैं, ये दोनों 3 डिग्री हैं, तो रिएक्शन हमेशा स्टेबल रूट को फॉलो करेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाले रूट को फॉलो करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट होगा हमेशा सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे इन प्रेफरेंस टू थर्ड पोजीशन। तो आप यहाँ पर लिखिए CH3 is an orthopara directing group in second and fourth position 3 degree carbocations are formed which are more stable than 2 degree carbocation. Hence, CH3 group will direct electrophile towards second and fourth
in preference to third position. ठीक है जनाब? Question 7. Amino acid can be separated by thin layer chromatography. A mixture of amino acid is analyzed using this technique. The chromatogram obtained is shown down the scale. The table shows some RF values for different amino acid in the solvent used. वो कह रहे हैं use the chromatogram and the RF value to deduce the amino acid responsible for spot A and spot B. तो बेटा हम सिंपल सा एक काम कर लेते हैं. हम सबसे पहले RF value for spot A कैलकुलेट करते हैं. ये हो जाएगा 3.5 divided by 5. So 3.5 divided by 5 जब हम करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 0.7 और 0.7 जो है वो ल्यूसीन को है. तो आप बता दीजिए कि भाई ये ल्यूसीन है हमारे पास. फिर हम RF वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बी की. बी का जो स्पॉट है उसकी वो है 1.5. यहाँ से पता चल रहा है ये आ गया 1.5 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 5. तो मैं 1.5 को डिवाइड कर देता हूँ 5 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.3 जो है वो ग्लूटामिक एसिड का है. इसका मतलब स्पॉट बी इज बेसिकली ग्लूटामिक एसिड. बहुत अलर्ट रहना. A second chromatogram of the same mixture is taken using more polar solvent. Predict the effect on the RF values of the amino acid. Explain your answer. यार हमने ये कहा था कि जो डिस्टेंस कम ट्रेवल करता है वो पोलर होता है, जो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करता है वो लेस पोलर होता है ना. अब हमने क्या किया, मोर पोलर सॉल्यूट किया. जब मोर पोलर सॉल्यूट लेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो बी है ये ज्यादा एफिनिटी शो करेगा इस सॉल्वेंट में. सॉल्वेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा. जब डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा तो आरएफ की वैल्यू भी ज्यादा होगी. तो आप बताएंगे RF value greater because P will show more affinity with the more polar solvent. More polar solvent. ठीक है. उसके बाद वो कह रहे हैं ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइसिन. अगर मैं HCl से रिएक्शन करा रहा हूं तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस NH3 प्लस CH2 COOH. NaOH से रिएक्शन होगा तो ये प्रोटॉन डोनेट करके सॉल्ट वाटर बना लेगा. तो ये हो जाएगा NH2 CH2 COONA प्लस वाटर. ठीक है भाई. इसके बाद है आपके पास in aqueous solution amino acid exist as zwitterine. Draw the zwitterionic structure of glycine. Explain how this zwitterionic of glycine is formed. तो बेटा ये हमने आपको सिखाया हुआ है CH2 COO नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा NH3 प्लस. अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जनाब इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन होगा. Internal acid base reaction takes place in which COOH will undergoes deprotonation and NH2 undergoes protonation. ठीक है.
Apart from glycine, all naturally occurring amino acids have a chiral center and exhibit stereoisomerism. Draw the two stereoisomers of alanine. So बेटा मैं सिंपल सा ये COOH कर देता हूँ. ग्रुप्स अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं आप. ये CH3, ये NH2 और ये H, तो ये हो जाएंगे CH3, ये हो जाएगा COOH, ये हो जाएगा NH2 और ये हो जाएगा H. The amino acid alanine can be synthesized from 2 chloropropanoic acid. State the reagents and conditions and name the mechanism for this reaction. बेटा अगर मैंने इस कंपाउंड से, और से सुनिएगा, इस कंपाउंड से ये बनाना हो तो अब नोट करें Cl की जगह क्या आ रहा है, NH2. बाकी तो सब कुछ एज इट इज है. तो Cl की जगह NH2 लाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, अमोनिया एंड एथेनॉल. और हीट करूंगा. नेम ऑफ मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अल्काइल हैलाइड ऑलवेज अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फिर वो कह रहे हैं आपसे state and explain the relative acidities of trichloroethanic acid, chloroethanic acid and ethanoic acid. बेटा ethanoic acid की एसिडिटी सबसे कम, उससे ज्यादा क्लोरोइथेनोइक एसिड है स्ट्रॉन्गर, और सबसे ज्यादा ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्गर है. और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए इसका स्ट्रॉन्गर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा. स्ट्रॉन्गर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. So ionization of hydrogen easier होगी. And also ये एनाइन को भी स्टेबलाइज कर देगा. Next is serine can react with alanine to form 3 different structural isomers, each with the molecular formula this. Draw the structure of these 3 structural isomers. बेटा पहली पॉसिबिलिटी कि ये COOH और ये NH2 आपस में रिएक्शन कर लें. तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जरा देखिएगा. डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं. CH2OH, CH, ये NH2 एज इट इज, ये CO एज इट इज. इसने बॉन्डिंग की है NH के साथ, NH के साथ CH, CH3 आ गया ब्रांच में, और ये COOH हो गया. ठीक है. ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका NH2 और इसका COOH आपस में रिएक्शन करके बॉन्ड बना लें. तो हम देखें CH3 CH NH2 CO के बाद है NH के साथ क्या अटैच है CH, इस CH के साथ क्या अटैच हो गया COOH, और ये CH2OH एज इट इज. ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिलकर क्या बना लें एस्टर. तो हम डायरेक्टली पहले हम ये पोर्शन लिखेंगे फिर हम ये लिखेंगे, ये याद रखिएगा. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे CH3 CH NH2, ये हो जाएगा आपके पास CO, इसके बाद O के बाद CH2, फिर CH, फिर NH2 और फिर COOH. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. कंपाउंड R is shown
State the systematic name of compound R. तो आप बोलेंगे 4-chloro-2,3-dimethyl-phenol. 4-chloro-2,3-dimethyl-phenol. वो कह रहे हैं R is dissolved in this and analyzed using carbon-13 and proton NMR spectroscopy. Predict the number of peaks that are seen in the carbon-13 NMR spectrum of R. So भाई ये फर्स्ट कार्बन हो गई, ये दोनों क्या हो जाएंगी सेकंड, ये दोनों क्या हो जाएंगी थर्ड, ये दोनों क्या हो जाएंगी फोर्थ, एंड दिस वन फिफ्थ. तो 5 पीक्स हो जाएंगी यहाँ पर. प्रोटॉन एनएमआर की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन एनएमआर में एक इसकी पीक होगी, इन दोनों की पीक्स होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इन 6 हाइड्रोजन्स की पीक्स होंगी, और इन 6 प्रोटॉन्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम भी होगा क्योंकि OH के साथ सेम डिस्टेंस से अटैच है, इसलिए 3 पीक्स होंगी यहाँ पर. A separate sample of R is dissolved in D2O. The proton NMR spectrum of the solution shows one less peak than is obtained in CdCl3. ये वाला हाइड्रोजन जो है वो ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक पीक जो है OH की वो डिसअपियर हो जाएगी. तो आप यहाँ लिखेंगे पीक ऑफ OH will disappear. This is because hydrogen is replaced with deuterium while deuterium cannot show absorption in radio frequency region. ठीक है बेटा. इसके बाद है compound R reacts separately with the 4 reagents shown in the table. Complete the table by drawing the structure of the organic product form. State the type of reaction. तो बेटा यहां से आप सिंपल ये कर सकते हैं कि H हटाइए और इसकी जगह पर Na अटैच कर दीजिए. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं आप, रीडॉक्स भी कह सकते हैं. इथेनॉल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है तो बेटा ऑब्वियसली आप यहां से H हटाएं, इसकी जगह पर आप लिख दीजिए COCH3. आप कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक ब्रोमीन ऐड होगा, एक ब्रोमीन ऐड होगा, इसके अलावा कोई और स्पेस अवेलेबल है नहीं. तो एक ब्रोमीन हमने यहाँ ऐड करी, एक ब्रोमीन हमने यहाँ ऐड करी. इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजीन पर जब भी कोई रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है. ओके फिर उसके बाद डायजोनियमाइन से रिएक्शन होगा तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए. ठीक है, और इसको हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं अगर आपको याद हो. When benzene diazoniamine reacts with phenolic compound, उसको हमेशा कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है. ठीक है बेटे. This paper is finished.